Welcome students. Today's topic is Embedded System Part 1. In this lecture we will discuss what is embedded system, history of embedded system, types of embedded system, features and characteristics of the embedded system. Let's start with embedded system. तो embedded system को समझने के लिए हम सबसे पहले system समझेंगे, फिर देखेंगे what is embedded and then we will see what is embedded system. तो system क्या है? A system is an arrangement in which all of its units assemble and work together to do many tasks according to the set of rules. For example, watch is a displaying system. It is a system जो display कर रही है time को. And what is embedded? Embedded means something that is attached to another thing. किसी चीज को किसी चीज से attach कर देना कहलाता है हमारा embedded. Now what is embedded system? हमें पता चल गया what is system, what is embedded. Now what is embedded system? Embedded system is a combination of computer software and hardware designed to perform a specific task which is either fixed in capability or programmable. That means embedded system एक ऐसा system है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन करके डिज़ाइन किया जाता है और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें. ये प्रोग्रामेबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है. Embedded system can be an independent system or a part of any large system. Embedded system is microcontroller based, soft driven, reliable and real time control. Now history of embedded system. In 1960s, embedded system was first used for developing Apollo guidance system by Charles Stark Draper at MIT. In 1965, Autonics development the D-17B, the computer used in Minuteman missile guidance system. In 1968, first embedded system for a vehicle was released. In 1971, Texas Instruments developed the first microcontroller. In 1987, first embedded OS VxWorks was released by Wind River. In 1996, Microsoft Windows embedded CE. By late 1990s, the first embedded Linux system appeared. In 2013, the embedded market reached $140 billion. Analysts are projecting an embedded market larger than $40 billion by 2030. Now come to the types of embedded system. कितने types होते हैं embedded system के? तो according to the bit microcontroller, we can divide embedded system into three parts: small scale, medium scale and sophisticated. In the small scale, designed with single 8-bit or 16-bit microcontroller, it is operate with the help of battery. और इसमें कौन से tools use होते हैं? जैसे editor, assembler and cross assembler are most vital programming tools are used. In a medium scale embedded system, it is designed with 16 to 32-bit microcontroller. Hardware and software complexities both are present and the tools are used. C, C++, Java, source code, engineering tools are used. Now, sophisticated embedded system, it is designed with 32-bit to 64-bit microcontroller having lot of hardware and software complexities, and it requires IPS, ASIPS, PLAs, configuration, processor or scalable processor are used. Next topic is feature of embedded system. The most important feature of embedded system is single function. That means it is developed for only one specific task. It does not perform many tasks at a time because it is designed only for a specific task. For example, fire alarm. If a fire alarm is designed
as embedded system because fire alarm only detect smoke. It does not detect dust particle or any other thing. It is only sensitive for smoke particle. धुएं के प्रति ही सेंसिटिव है फायर अलार्म, उसी के प्रति रिस्पॉन्स देती है. अगर डस्ट है या कोई और इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं तो फायर अलार्म कोई भी आउटपुट शो नहीं करती है. तो इट डज द सेम टास्क रिपीटेडली एट एवरी टाइम. हर टाइम ये अपने इसी टास्क को करती है, अपने टास्क को चेंज नहीं करती है. इसलिए इसको बोलते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक सिंगल फंक्शन सिस्टम होता है. It is tightly constrained, that means it follow the design matrix strictly. Reactive and real time. Reactive का मतलब होता है कि जो सिस्टम चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली रिएक्ट करता रहता है और जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूट करता है रिजल्ट को और फिर शो करता है. एंड रियल टाइम मीन्स कि इट डज इट ऑपरेशन इन अ टाइम, इन अ डेफिनेट टाइम विदाउट एनी डिले. That means operation has to be performed completed by deadline. For example, car brake control. Brake must be in time, otherwise accident occur. माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है एम्बेडेड सिस्टम. एक माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है. लिमिटेड मेमोरी, जैसा कि बताया कि एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. अगर सॉफ्टवेयर ड्राइवन सिस्टम है तो उसमें प्रोग्राम होंगे और प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होंगे. दैट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी. इसमें लिमिटेड मेमोरी होती है. सॉफ्टवेयर यूजली एम्बेडेड इन रॉम एंड दिस सिस्टम डज नॉट नीड सेकेंडरी मेमोरीज. पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं एम्बेडेड सिस्टम में. पेरिफेरल्स टू कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रेजेंट in embedded system. Software means system use more features and more flexible, and the hardware means use for increased performance and security. Now come to the next point, characteristics of the embedded system. The main characteristic same thing, task specific work के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है. Low cost, require less power, मिनिमल यूज़र इंटरफेस. डैट मीन्स इसमें लिमिटेड इनपुट या आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक इनपुट पर हम बटन या सेंसर यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट पे हम लाइक LCD LEDs यूज़ कर सकते हैं. तो मिनिमल यूज़र इंटरफेस होता है इसमें. इट इज़ टाइम स्पेसिफिक, मतलब टाइम बाउंडेड होता है. तो टाइम स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम में भी हमने बताया कि डेडलाइन के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है हार्ड टाइम स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट टाइम स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम. दोनों के अंतर को समझ लेते हैं. हार्ड टाइम स्पेसिफिक ऑपरेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय डेडलाइन. डैट मीन्स कि जिस चीज़ के लिए एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, जिस टास्क को, जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, वो अपने उस पर्टिकुलर टास्क को एक डेडलाइन जो दी गई है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर ही, इस समय सीमा के अंदर ही काम खत्म हो जाना चाहिए, प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए. तो इस तरह के जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिसमें ऑपरेशन हैज़ टू बी completed by deadline, this is hard time specific. For example, track of incoming missile attacks must precisely calculate and plan their counter attack due to hard real time deadline, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय. कि अगर आप किसी मिसाइल अटैक के हो रहा है, उस इनकमिंग है, उसको ट्रैक करना है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि उस पर किस तरह से काउंटर अटैक करना है. तो ये सब एक जो डेडलाइन दी है उसके अंदर ही इस टास्क को कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग डिस्ट्रॉय. तो लाइफ पे ये लाइफ जो है, लाइफ इस पर इफेक्टेड होती है, जीवन इस पर इफेक्टेड होता है. इसलिए इसको ये है हार्ड टाइम स्पेसिफिक. And the second one is soft time specific. That means delay will be manageable. Soft time means कि delay जो है वो manageable है. Just like जैसे आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हो और कंप्यूटर तुरंत ऑन नहीं होकर 2 से 3 सेकेंड बाद ऑन हो रहा है, तो आप ये लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. इट्स विल बी मैनेजेबल. तो इसको बोलते हैं हम सॉफ्ट टाइम स्पेसिफिक. तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, जस्ट लाइक टीवी का रिमोट कंट्रोल है कि टीवी ऑन किया, टीवी जस्ट तुरंत ऑन ना होकर के 1 सेकेंड का 2 सेकेंड का डिले होकर टीवी ऑन हो रही है. तो इस तरह का जो सिस्टम है, दैट इज द सॉफ्ट टाइम स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम.
इट इज़ हाईली एफिशिएंसी, हाईली एफिशिएंट होता है, मतलब वर्किंग ऑन करंट आउटकम। इन्वायरमेंट बताया हमने कि इन्वायरमेंट को लगातार ट्रेस करता रहता है, ट्रेस करके रिएक्टिव होता है। जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तुरंत उसके प्रति ये सेंसिटिव होकर के अपने आउटकम चेंज कर देता है, अपना आउटपुट चेंज कर देता है, और ये बहुत ही इफिशिएंटली वर्क करता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाईली इफिशिएंसी। एंड हाईली रिलायबल मीन्स मेजर द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम when function is critical during the runtime. And it is also a very highly stable, that means it does not change or upgrade by user till end of system life. इसे हम user चेंज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसको जिस भी काम के लिए इसमें जो भी एल्गोरिथम यूज़ हुई है वो टिल द होल टाइम, लाइफ टाइम इसके पास रहती है, और ये अपने उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करता है। इसको ना ही हम चेंज कर सकते हैं और ना ही हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। एंड द पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं इसमें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज़ फॉर मोर फीचर्स। सॉफ्टवेयर में यूज़ करने से इट यूज़ मोर फीचर्स एंड मोर फ्लेक्सिबल, एंड हार्डवेयर यूज फॉर इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी. So these are the main characteristics of the embedded system. In the next lecture, we will discuss further about the embedded system in part 2. Thank you.